A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue this chapter, Planning and Development, and of your book, Politics in India Since Independence. In our last class, we discussed about the Planning Commission and the early initiatives taken by the government of India after independence. We talked about it, and we have seen our government, the government of India, came up with, they followed and they influenced by the socialist model, and they followed the Soviet Union model, that 5-year plan model. Okay, so now today our today's topic is first 5-year plan, and after that we will talk about rapid industrialization, which is like second 5-year plan. Okay, so now the first 5-year plan from 1951 to 1956. So he was the man KN Raj, or आप बोल सकते हो काकादन नंदानाथ राज, काकादन नंदानाथ Raj. He was the young economist involved in drafting the document of first 5-year plan. He is known as the architect of the first 5-year plan, KN Raj. ठीक है, फुल नेम याद नहीं रहता है तो KN Raj याद रखना, Kakadan Nandanath Raj. Okay, so as you all know, after independence and after partition, like our India got like India was in so much trauma, and बहुत सारे sectors, especially agriculture sector, we all are like much dependent on agriculture. वो भी बहुत ज़्यादा affect हुआ था. So और बहुत ज़्यादा poverty भी थी. तो first 5-year plan जो basic focus था वो था कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट इकोनॉमी from the cycle of poverty. Okay, so now he is the man behind the drafting of document of first 5-year plan, and his name is KN Raj. Okay, he argued that, now what he said, he argued that India should hasten slowly for the first 2 decades, as a fast rate of development might endanger democracy. Now what he argued, now there is a term called hasten slowly. Hasten means hota hai run, slowly means you all know what the slow means. Okay, now these two opposite terms came together. What does it really mean? It means like we have to act in such a manner, and we have to focus on such details in order to avoid in order to avoid mistakes. कि हमें डेवलपमेंट करनी है, हमें ग्रोथ करनी है, बट हम उस ग्रोथ के चक्कर में हमें बहुत ज्यादा भागना भी नहीं है. वी हैव टू रन स्लोली फॉर द development, for the real development of the country, and at least for 2 decades we should not increase our speed. ठीक है, हमें अपनी स्पीड को इंक्रीज नहीं करना है. अगर हमने फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट, अगर हमने डेवलपमेंट को बहुत फास्ट रेट से करना स्टार्ट कर दिया, तो ये हमारे डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा हर्डल बन जाएगा. इट विल इंडेंजर आवर डेमोक्रेसी. Okay, why it will endanger our democracy? Because as you all know it कि न्यू डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी. ठीक है, हमारी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में. उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे इस चीज को लेके, प्रिंसली स्टेट्स को लेके. ठीक है, रीजनल डिफरेंसेस काफी थे. और अगर हमने डेवलपमेंट कर लिया, और फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर रीजन में डेवलपमेंट ज्यादा हो चुका है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर रीजन क्या है, एक सेग्रीगेशन की डिमांड करेगी. राइट, तो वी शुड इंडिया शुड डेवलप बट इट शुड डेवलप स्लोली. ठीक है, हाँ, डेवलपमेंट चाहिए बट उसे स्लोली अपनी ग्रोथ करनी चाहिए, डेवलपमेंट करनी चाहिए, एंड एटलीस्ट फॉर 2 decades, एटलीस्ट 20 साल तक, 20 years तक हमें क्या है, डेवलपमेंट की जो रेट है वो कम रखनी चाहिए. ओके, सो नाउ दिस इज द फर्स्ट पेज, और यू कैन से द कवर पेज ऑफ द फर्स्ट 5-year plan, planning under planning commission. Okay, now
what is the main like what this first 5 year mainly addressed, ठीक है, it mainly addressed the agrarian sector including investment in dams and irrigation. Okay, before this topic, like before, like we have seen कि क्या objectives थे, क्या क्या उन्होंने developments की. ये जो first 5 year plan था बेटा, ये हैरिड डोमार मॉडल, ठीक है, हैरिड डोमार मॉडल बुक में नहीं है मेंशन, बट आपको बता देती हूँ कौन से मॉडल पे ये इन्होंने बेस था. हैरिड डोमार मॉडल. नाउ हैरिड कौन थे? हैरिड आपके रॉय एफ हैरिड, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, और डोमार एफ से डोमार ने 1946 में एक थ्योरी दी थी. एंड अकॉर्डिंग टू बोथ द थ्योरीज, ठीक है, फिर हैरिड ने पहले काम किया, फिर डोमर ने उस थ्योरी पे काम किया, इस मॉडल पे काम किया, और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट in terms of the level of savings and capitals. हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, बट सेविंग्स ज्यादा होनी चाहिए और कैपिटल्स होनी चाहिए, ठीक है. लेवल ऑफ सेविंग एंड लेवल ऑफ कैपिटल के बेसिस पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, कि लोग खर्च कम करें, सेव ज्यादा करें, फिर इन्वेस्टमेंट करें. इसके बेसिस पे हमारी जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए और हमारा जो है ग्रोथ होना चाहिए. तो हैरिड डोमार मॉडल पे ये जो था फर्स्ट 5 year प्लान आपका बेस्ड था, ठीक है. Now the first 5 year plan mainly addressed on the agrarian society sector. Agrarian sector means agriculture sector including investments in dams and irrigation. अगर dams और irrigation में investment करेंगे और ये better होगा तो आपका irrigation factor better होगा, तो आपका agriculture sector भी better होगा. And इसे, as you all know, agriculture sector was hit hardest by partition and needed urgent attention, ठीक है. अब कंट्री जो है डिवाइड हो चुकी थी, पार्टीशन हो चुका था, तो एग्रीकल्चर बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए थे, ठीक है. लैंड्स बहुत सारे लोगों की उनसे ले ली गई थी. तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है सबसे ज्यादा हिट हुआ था पार्टीशन के बाद, और इसमें एक जो अटेंशन है, फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी. So huge allocations were made for large scale projects like Bhakra Nangal Dam, Hirakund Dam, Mettur Dam, Damodar Valley, ठीक है. भाखरा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश में, भाखरा नांगल डैम जो सतलज रिवर में बनाया गया. हीराकुंड डैम आपके महानदी उड़ीसा में हीराकुंड डैम बनाया गया. मेटूर डैम बनाया गया आपके कावेरी नदी में तमिलनाडु में. दामोदर झारखंड वेस्ट बंगाल में दामोदर रिवर में दामोदर वैली को बनाया गया. So these were like some of the projects, large scale projects, जिसमें काफी इन्वेस्टमेंट किया गया था, काफी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी, जो एक बजट दिया गया था इन डैम्स में बहुत ज्यादा. इन ऐसे प्रोजेक्ट्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये डैम्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे बहुत ज्यादा इन पे फोकस किया गया था. So ये the plan identified the pattern of land distribution in the country as the principal obstacle in the way of agriculture growth. अब जो एक मेन चैलेंज बोलोगे कि मेन चैलेंज क्या था उस टाइम पे, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जमींदारी सिस्टम चल रहा था. जिन लोगों के पास पैसा था, बहुत पैसा था, बहुत सारी लैंड्स थी, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं थी, तो इनइक्वालिटी बहुत थी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे भी. तब जिसके पास लैंड थी, बहुत ज्यादा लैंड थी, अगर उनसे लेके किसानों को देना था, छोटे जो फार्मर्स हैं या फिर जो जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, उन्हें लैंड डिस्ट्रीब्यूट करनी थी. बट ऑब्वियसली वो अपनी जो जमींदार थे या जो जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड थे, वो अपनी लैंड देना नहीं चाह रहे थे. तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो था एक प्रिंसिपल, आप बोल सकते हो एक मेन हर्डल था, ऑब्स्टिकल था एग्रीकल्चर ग्रोथ में. कोई भी अपनी लैंड नहीं देना चाहता, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा
लाइक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो था एक सबसे मेन ऑब्स्टिकल था. इट फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज द की टू कंट्रीज डेवलपमेंट. तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें जो फोकस किया गया था लैंड रिफॉर्म्स पे फोकस किया गया था कि लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना जरूरी है. और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए हमें हमें क्योंकि क्या करना है, पोवर्टी से लोगों को क्या करना है, निकालना है साइकिल ऑफ पोवर्टी से. वी हैव टू गेट आउट द कंट्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ पोवर्टी. तब उसे निकालने के लिए लोगों के पास जॉब्स होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, ठीक है, कुछ लैंड होनी चाहिए. लैंड होगी तभी एग्रीकल्चर कर पाएंगे, एग्रीकल्चर कर पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, उनके पास पैसे आएंगे, ठीक है. तो लैंड रिफॉर्म्स पे काफी फोकस किया कंट्री की डेवलपमेंट की. इसके अलावा इरिगेशन हो गया, लैंड एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, इरिगेशन हो गया, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स के अलावा जो मेन फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस था वो चिल्ड्रन के हेल्थ में था. चिल्ड्रंस हेल्थ एंड रिड्यूस्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चिल्ड्रन के हेल्थ पे था. और इस टाइम पे आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजी पे भी थोड़ा बहुत फोकस किया गया था. तो 5 IITs जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस टाइम पे ओपन भी हुई थी. तो ये कुछ चीजें थी जो 5 ईयर प्लान में मेंशन की गई थी और उसको इम्प्लीमेंट किया गया था. जो मेन इम्प्लीमेंटेशन था, जो मेन फोकस था वो प्राइमरी सेक्टर पे था. प्राइमरी सेक्टर को ऊंचा उठाने के लिए था, ठीक है. जो पुअर थे उनको क्या करना था, उनको पोवर्टी के साइकिल से निकालना था. Okay, so one of the basic aims of the planners was to raise the level of the national income, which could be possible only if the people saved more money than they spent. अब देखिए बेसिक एम क्या था प्लानर्स का, दे वांटेड टू रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है. जो पॉपुलेशन है, पर्सन्स है, उनकी नेशनल इनकम जो है उनको रेज करना था. एंड अकॉर्डिंग टू द प्लानर्स, और ये जो as I already told you, they followed Harrod-Domar model, and according to that model savings सबसे ज्यादा होनी चाहिए और कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा, सेविंग्स होनी चाहिए और कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. तो अब बेसिक एम था कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, मनी सेव करें, जितना वो खर्च कर रहे हैं उससे कम करें. बट जो लेवल ऑफ स्पेंडिंग थी ऑलरेडी बहुत कम थी, ठीक है. आज आप देखोगे तो हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है बहुत ज्यादा है. आज से 70 साल पहले के कंपैरिजन में अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखें और आज के टाइम पे देखें तो हमारी जो बेसिक से जो नेसेसिटीज है बहुत क्या है, बहुत ज्यादा है आज के टाइम पे. और कंपैरेटिवली उस टाइम पे कुछ नहीं था. अब जैसे मैं बोलूँ कि घर पे जो तेल आता था, ठीक है, आज के टाइम पे हमारे लिए क्या है बेसिक नेसेसिटी कि बाहर के लिए अलग कपड़े होने चाहिए, फंक्शंस के लिए अलग कपड़े होने चाहिए, ठीक. एक नॉर्मली बता रही हूँ आपको मैं, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि अगर 2 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स है तो 2 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स घर के लिए, 2 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स बाहर के लिए. ऐसा कुछ नहीं होता था कि इतने इतने कपड़े चाहिए होते हैं, ठीक है, या बहुत सारे शूज चाहिए या चप्पल चाहिए, या आप बोल दीजिए कि जो खाने में भी होता था. तो आज के टाइम पे हमें क्या है, लाइक हम तो बहुत कुछ बनाते हैं. उस टाइम पे बेसिक खाना था, ठीक है, नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल, ठीक है, मेन तो यही था, ठीक है. बट आज के टाइम पे अलग अलग वेराइटीज हो गई है, तो अलग अलग स्पाइसेस हम रखते हैं. तो हमारी बेसिक नेसेसिटीज जो है टाइम के साथ इंक्रीज हुई है. तो उस टाइम पे जब गवर्नमेंट का जब ये फोकस था कि लोग कम से कम खर्च करें, तो बेसिक लेवल ऑफ स्पेंडिंग ऑलरेडी बहुत कम था 1950s के टाइम पे, एंड इट कुड नॉट बी रिड्यूस्ड एनीमोर. अब उसको आटा चाहिए, किसी पर्सन को तो चाहिए ना, आटा तो चाहिएगा, ठीक है, तेल चाहिए, आटा चाहिए, नमक चाहिए. अब इससे कम तो कोई क्या बेसिक नीड रखेगा ना. तो बेसिक लेवल ऑफ स्पेंडिंग वाज ऑलरेडी वेरी लो इन द 1950s. तो ये अपनी रिडक्शन, लोग और कैसे पैसा सेव करें, अपना स्पेंडिंग लेवल जो है और कैसे कम कर सकते थे. तो कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिले थे. क्या क्या चैलेंजेस थे? The total capital stock in the country was rather low compared to the total number of the employable people. Okay, अब हम या तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दें तो ये चैलेंज फुलफिल हो सकता था, या कि लोगों के पास सेविंग्स हो सकती थी. बट अब हम कंट्री के पास, गवर्नमेंट के पास भी क्या था,
एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही थी, कौन नहीं जनरेट कर पा रही थी? गवर्नमेंट जनरेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो कैपिटल स्टॉक था वो बहुत लो था कंट्री में एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और या एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. So, nevertheless, people's savings did rise in the first phase of the planned process until the end of the third 5-year plan. अब लोगों की जो सेविंग्स थी, ठीक है, अब वो इंक्रीज भी हुई थी फर्स्ट फेज में, ठीक है, ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ द प्लान प्रोसेस अंटिल द एंड ऑफ द थर्ड 5-year प्लान. उसके बाद हमने फोर्थ 5-year प्लान में भी डिस्कस किया था कि फोर्थ 5-year प्लान में कंट्री के पास बहुत सारे उस टाइम पे वॉर वगैरह भी हो गए थे, कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज्यादा लो हो चुकी थी, कंट्री के बहुत ज्यादा क्राइसिस फेस कर रही थी हमारी कंट्री उस टाइम पे, तो फोर्थ 5-year प्लान को शिफ्ट भी कर दिया गया था. तो लोगों ने फिर भी सेविंग्स को थोड़ा बहुत किया था, और फोर्थ 5-year प्लान तक क्या हुआ, जो सेविंग्स थी वो क्या होने लग गई, कम होने लग गई. The rise was not as spectacular as was expected at the beginning of the first plan. जो फर्स्ट प्लान में लोगों ने जो सेविंग्स की थी, ठीक है, स्पेंडिंग लेवल ऑलरेडी कम था, फिर भी लोगों ने क्या है, सेविंग करना स्टार्ट कर दिया था, सेविंग्स की थी. एंड उसके कंपैरिजन में जो स्पेक्टेक्युलर ग्रोथ हमने फर्स्ट 5-year प्लान में देखी थी, वो ग्रोथ जो है हमने सेकेंड 5-year प्लान और थर्ड 5-year प्लान में नहीं देखी. So later, from the early 1960s till the early 1970s, the proportion of saving in the country actually dropped consistently. और 1960s से फर्स्ट 5-year प्लान में ठीक था, सेकेंड 5-year प्लान में कंपैरेटिवली ठीक था, बट धीरे धीरे क्या हुआ, थर्ड 5-year प्लान, फिर फोर्थ 5-year प्लान, फोर्थ 5-year प्लान तक आते आते जो है, जो सेविंग्स थी, लोगों की प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग जो था वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुका था. अब कंसिस्टेंटली क्या हो रहा था, ड्रॉप होने लग गया था जो लोगों की सेविंग्स थी उस टाइम पे. ओके, तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो फेस कर रहे थे, ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट 5-year प्लान. ओके, so now class, our second topic is rapid industrialization, which is basically the second 5-year plan from 1956 to 1961. okay, तो 19 रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? एज यू ऑल नो, फर्स्ट 5-year प्लान जो है किस पे फोकस कर रहा था? फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. एंड सेकेंड 5-year प्लान का जो मेन फोकस था, इट वाज गिविंग स्ट्रेस ऑन हेवी इंडस्ट्रीज. हेवी इंडस्ट्रीज आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज होती है वो इंडस्ट्रीज हो गई. तो सेकेंड 5-year प्लान का जो मेन फोकस था वो किस पे था? हेवी इंडस्ट्रीज पे था. सो इट वाज ड्राफ्टेड बाय अ टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड प्लानर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशांत चंद्र महालनोबिस. ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, ये लीड कर रहे थे. एंड ये जो मॉडल था सेकेंड 5-year प्लान का, जो मॉडल था वो फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल कहा जाता है, जिसमें मेन फोकस किस पे किया जाता है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, according to this model, we have to reach a high standard in consumption, investment in building a capacity in the production of capital goods is firstly needed. कि कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा हो, कंजम्पशन होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग अ कैपेसिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे आप कैपिटल गुड्स को बनाएंगे. एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर जो है आपका इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है. तो हैवी इंडस्ट्रीज, तो ये फेल्डमैन महालनोबिस ने ये मॉडल दिया था, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने, और इन्होंने जो मेनली फोकस किया था किस पे दिया था कि हैवी इंडस्ट्रीज बनाइए, ठीक है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बनाइए और फिर कंट्री की डेवलपमेंट करें, ठीक है. तो ये मेन इस पे था. सो सेकेंड 5-year प्लान
किसने किया था? इकोनॉमिस्ट और कुछ प्लानर्स थे जिन्होंने पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के लीडरशिप में उन्होंने ये ड्राफ्ट किया था एंड इट फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन? Structural transformation, it means like we have to transit an economy from low productivity कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कम था ना हमारी कंट्री में, तो हमें अपनी कंट्री को क्या करना है, एक लो प्रोडक्टिविटी से क्या है हाई प्रोडक्टिविटी और स्किल इंटेंसिव एक्टिविटीज हमें डेवलप करने हैं, लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमें इंक्रीज करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है. तो ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है कि वी हैव टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन. वी हैव टू, और प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगा? जब लोगों की कंजम्पशन इंक्रीज होगी. ठीक है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, लोगों की अगर कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा. प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कैपिटल भी आएगा, और कैपिटल आएगा तो हमें क्या है, स्किल्स पे, डेवलपमेंट पे हमें फोकस करते हुए क्या है, ट्रांसफॉर्म करनी है हमारी सोसाइटी को. तो मेन फोकस जो था सेकंड 5 ईयर प्लान का वो क्या था? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी हैव टू फोकस मोर ऑन हैवी इंडस्ट्रीज. So, before this plan was finalized, the Congress party at its session held at Avdi near the then Madras city passed an important resolution. अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने क्या है, मद्रास में, एक मद्रास के आसपास एक गांव था अवधि, वहां पे उन्होंने, कांग्रेस ने क्या किया था, एक सेशन में एक रेजोल्यूशन को पास किया था. एक इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन था. क्या था इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन? They declared socialist pattern of society was its goal. ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारा जो मेन गोल है, our main goal is socialist pattern of society, and it socialist pattern of society जो यूएसएसआर और सोवियत यूनियन के कुछ सोवियत यूनियन के अंडर जो कंट्रीज थी वो जो इस पैटर्न को फॉलो कर रही थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स वाला जो था, सोशल नीड्स होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास इंडस्ट्रीज का होना चाहिए. तो उन्होंने बोला कि हमारा मेन गोल है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, और ये जो पैटर्न है ये हमें सेकंड 5 ईयर प्लान में रिफ्लेक्ट भी हुआ था. ठीक है, सो नाउ बिफोर दैट रिफ्लेक्शन हम पढ़ते हैं, उससे पहले देख लीजिए कि पीसी चंद्र जो है वो कौन थे. पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, he was the scientist and statistician of international repute. ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, स्टैटिस्टिशियन थे. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट फाउंड किया था इन्होंने. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो जितने भी ग्राफ्स वगैरह देखते हो कि जितना भी कंट्री का कितना ग्रोथ हुआ है, क्या हुआ है, एवरीथिंग, इसमें इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को इन्होंने फाउंड किया था. बहुत ही कम एज में उन्होंने फाउंड कर दिया था ये, बहुत ही कम एज में इन्होंने ये काम कर दिया था 1931 में. He was the architect of the second plan, second 5 ईयर प्लान के आर्किटेक्ट रहे हैं. सपोर्टर ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्टिव रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, की पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा रैपिड होनी चाहिए. ये सारे चीजें इन्होंने बोली थी, आर्ग्यू किया था. देखिए, इनके पीसी महालनोबिस के लिए एक स्टैम्प भी इशू किया गया है. ठीक है, ये देखो, इन पीछे एक गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को शो किया गया है, और ये स्टैम्प जो है उन्होंने इशू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर द पीसी अंडर दिस ये पीसी महालनोबिस का. ठीक है, सो नाउ हाउ इट, आप बोलोगे मैम ये सेकंड 5 ईयर प्लान में कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है socialist pattern of society? Now just look at this. The government imposed substantial tariffs on imports in order to protect domestic industries. सबसे मेन जो रोल प्ले किया गवर्नमेंट ने, क्या किया, टैरिफ बैरियर्स लगा दिए थे. बैरियर्स मतलब कि टैक्स लगा दिए थे, कस्टम ड्यूटीज लगा दी थी, जो भी इंपोर्ट्स थे उसमें हाई टैरिफ्स लगा दिए थे, बहुत ज्यादा बैरियर्स लगा दिए थे. खाली आप ये नहीं बोल सकते कि टैक्स लगाया था, और भी बहुत सारी चीजें जो है एज अ बैरियर वर्क करती है, उन्होंने इंपोर्ट पे लगा दिए थी.
और ये क्यों किया था? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स लगा दिए गए थे, एक बैरियर लगा दिया गया था। एंड सच प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट हेल्प बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज टू ग्रो। ऑब्वियसली पहले कोई प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जांपल उस टाइम पे हम खाने के प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा बाहर से मंगवाते थे, क्योंकि फूड की जो डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। एंड अब जो अमेरिका थी, ठीक है, वो क्या करते थे, लो क्वालिटी हमें फूड प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट कर दिया करते थे, और वो भी कम रेट में। तो अब टैरिफ लगा देने से क्या होगा, ये एक जस्ट एग्जांपल है, टैरिफ लगा देने से क्या होगा, अब वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो थोड़ा हैवी, वो थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो अब इससे क्या है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, फूड का एग्जांपल यहाँ पे सही नहीं था, आप और बोल सकते हो कि कोई क्लोथ का ले लो, कि कॉटन क्लोथ पहले बाहर से मंगवाया जा रहा था या आयरन बाहर से मंगवाया जा रहा था, तो अब उसको क्या है, उस पर टैरिफ्स लगा दिए, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इससे क्या हुआ, काफी प्रोटेक्शन मिली। और इस टाइप के इन्वायरमेंट ने हमारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज दोनों को ही ग्रो करने में काफी हेल्प किया। As savings and investment were growing in this period, a bulk of these industries like electricity, railways, steel, machinery and communication could be developed in the public sector. और अब देखो, हैरेड डोमार मॉडल भी चल ही रहा था, ठीक है, उन्होंने फोकस किया था कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा होनी चाहिए। तो अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स भी चल रही थी, ग्रो हो रहा था इस पीरियड में। तो और भी इंडस्ट्रीज जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रेलवेज हो गई, स्टील मशीनरीज हो गई, कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज हो गई, काफी डेवलप कर रही थी। एंड स्पेशली पब्लिक सेक्टर में आपने देखा होगा, रेलवे भी अभी तक लाइक अभी की गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंडर ही आता था, तो अब समहाउ बात हो रही है कि उसको प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, ठीक है, आई थिंक हो भी गया होगा। तो ये सारी चीजें जो है अंडर पब्लिक सेक्टर, ये सारी चीजें आई फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। Indeed, such a push for industrialization marked a turning point in India's development. Obviously, कुछ challenges थे जो face करने पड़े, और वो challenges क्या-क्या थे? इंडिया वॉज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, टेक्नोलॉजिकली बहुत बैकवर्ड था, मशीन्स नहीं थे, टेक्नोलॉजीज नहीं थी। तो जितने भी प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज थे हमारे, उन टेक्नोलॉजीज, जो ग्लोबल मार्केट है, जो कंट्रीज हैं, उनसे परचेज करने में क्या हो गया, सारी स्पेंड हो चुकी थी बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली हमें अगर कहीं और से परचेज करना है तो हमें तो फॉरेन एक्सचेंज ही लेना पड़ेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो क्या हो चुका था, स्पेंड हो रहा था। Apart as industries attracted more investment than agriculture, the possibility of food shortage loomed large. अब ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज जो थी वो डेवलप हो रही थी, अब लेबर्स को क्या है, ज्यादा पैसे इंडस्ट्रीज में मिल रहे थे, तो वो क्या होने लग गए, एग्रीकल्चर से शिफ्ट होने लग गए। और एग्रीकल्चर से जब शिफ्ट होने लगे तो अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम अराइज हुई कि फूड शॉर्टेज, कि अब फूड शॉर्टेज हो जाएगी हमारी कंट्री में, वहां हम फूड शॉर्टेज को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सो द इंडियन प्लानर्स फाउंड बैलेंसिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर रियली डिफिकल्ट, कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को हम कैसे बैलेंस करें, और इसे बैलेंस करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करने को मिल रही थी। Critics point out that the planned strategies from this time around displayed an unmistakable urban bias, ठीक है, अर्बन बायस मतलब अर्बनाइजेशन हो रहा था इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, तो इंडस्ट्रीज जो है क्या हो रही, लोग शिफ्ट भी होने लग गए थे फॉर द एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे एग्रीकल्चर में, तो वो इंडस्ट्रीज के लिए फोकस करने लग गए कि हमें इंडस्ट्रीज में जाना है। तो ये जो क्रिटिक्स थे, ठीक है, ऑपोजिशन में जो थे, वो पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये जो हमारी ये जो स्ट्रैटेजीज बनाई है प्लानर्स ने, वो जो मॉडर्न पीपल, नॉट मॉडर्न, जो अर्बन सेक्टर में पॉपुलेशन है, मतलब उनको देखते हुए बनाई गई है, ठीक है, तो एक बायसनेस देखने को मिलती है। Others thought that industry was wrongly given priority over agriculture, कि इंडस्ट्री को ज्यादा प्रायोरिटी दे दी गई है, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी नहीं दी गई है। तो ये भी एक बहुत सारे लोगों का व्यू था कि एग्रीकल्चर को देना चाहिए ज्यादा प्रायोरिटी।
there were also those who wanted focus on agriculture related industries rather than heavy ones. अब देखिए heavy industries और agriculture related industries, अब कुछ लोग चाहते थे कि agriculture related industries जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि cotton industries हो गई आपका, या फिर बिस्किट की इंडस्ट्री हो गई, मतलब रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि हैवी वंस, मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज या फिर रेलवेज मशीनरीज, इनसे ज्यादा जो इनके कंपैरेटिवली हमें जो फोकस करना चाहिए इंडस्ट्रीज पे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड पे रखना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर में होगा तो इससे क्या है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स की जो है डिमांड होगी, और रॉ मटेरियल्स की अगर डिमांड होगी तो हमारी फूड शॉर्टेज भी जो है वो कम नहीं होगी। ओके, so now class, this is all about today. So go through these topics, first 5-year plan and rapid industrialization, and if you face any problem do let me know. So in our next class we will talk about the key controversies, under that we will talk about like agriculture and industries, क्या क्या उनका कॉन्फ्लिक्ट रहा, क्या कंट्रोवर्सीज रही, क्या क्रिटिकल व्यू पॉइंट्स रहे थे। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो कल हम ये पढ़ते हैं कि कंट्रोवर्सीज जो मेन प्रॉब्लम्स थी अंडर सेकंड 5-year प्लान, तो उन दोनों पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर एंड agriculture versus industries, we will talk about it. Okay, so thank you so much class for joining the class. Please take care of yourself. Bye bye.